better, it actually makes us better in life. But before that, first order of business, I would request our principal sir and our dignitary to please light up the lamps. Please, sir. I would request our keynote speaker to address our students, to let them know their issues and enlighten us about stress. Please, sir. Thank you, Principal Sir, teachers, to give me the opportunity to interact with you. Today we will discuss about the stress. Stress is very much talked about nowadays. This is a part of our lifestyle, and most of the times this stress is perceived as a not good thing, adverse thing, interfering in our life, quality of life, and our day-to-day work. So, to get rid of this stress, we need to understand. To manage the stress, we need to understand the stress. By the understanding the stress, we will cut it down to half at least. So, basically, what is the stress? So, stress is basically mental, behavioral, emotional response to any perceived demand in the life. So these demand can be a good grades, social relations, your commutes, okay, your peer pressure. So these demand is having some pressure on it, and what we are feeling in the response of that pressure is the stress. Okay, so this stress is not new to humankind. ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. Stress is there since the evolution of the man, when the human being was the caveman living in the jungles, and that time there will be stress for the life. Any wild animal can come and there will be threat to the life. So at that situation, there should be the response. Either we need to fight or we need to flight. या तो लड़ना है या भागना है. So in both kind of situation, our body need to supply a extra energy, that protection. So to meet that extra energy, there is change in the body that are basically increase the heart rate, okay, increase breathing rate, there is a muscle tension. So whether you need to fight or flight. So to meet that, they are there to actually meet the supply of the oxygen and energy to the body. So with these physical changes, there's some mental changes, emotional changes in the situation of the stress. If we are hopeless, lack of energy, lack of motivation, we will feel trapped. We seek some help from the outside to take away from that dark tunnel of the problem. So that is the mental state. So this stress can be of two type. स्ट्रेस क्या हमेशा गलत होता है, हमेशा खराब होता है? नो, स्ट्रेस हमेशा खराब नहीं होता है. बेसिकली इन आवर लाइफ, when we are having stress, we are coping this stress successfully, overcoming the situation, we will be the better version of ourselves. We will be a better person to deal with such situations. So stress is basically helping us to challenge our limit, to develop our capacities. Okay, so these are just like guards. जैसे एक प्रहरी होता है ना, वो कहता है जागते रहो, जागते रहो. तो इसी तरीके से जो ये डिफिकल्ट सिचुएशन होती हैं, दे आर चैलेंजिंग यू. ओके, वो आपको सोने नहीं देती, लगातार अपनी क्षमताओं की सीमाओं को टेस्ट करने के लिए, विकसित करने के लिए आपको सजग करे रहती हैं. तो स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता है. देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रेस. वन इज यू स्ट्रेस, सेकेंड इज डिस्ट्रेस. ओके, so this stress is actually basically response of our body. This response can be the physiological responses, emotional responses. What makes something stressful in the life? When we feel that the demand is very strong, we cannot meet it, so we will have the stress. When situation is imminent, you will not have time. कभी एग्जाम अचानक से कहा कि कल ही एग्जाम है, परसों एग्जाम है, you can
complete the syllabus, but the time is very short. So if the situation is imminent, life transition, there are change. If you are changing your school, you are coming from other school, or you are having new friends, you are having new environment. So cope with this all things. It can be stressful. Okay. So any deviation from routine life can be the stressful. Ambiguity. Okay. If you not able to judge, not able to decide where to do or not to do, what to do or what not to do. So this ambiguity is very common at your age. Okay, what is right, what is wrong. Okay, so taking decision is also very much stressful. Desirability, expectations, your expectations can cause stress on you. Okay, controllability, if authority is controlling to you or you are having desire to control anybody else, that can also cause a stress. Next. So not all stress is bad. Basically stress is helping us to develop our capacity. So there is two type of stress. One is eustress. When in a life you are having the challenges and you are accepting these challenges with full of energy, full of motivation for constructive cause, and these situation is productive, then this is eustress. Just like before the एग्ज़ाम से पहले क्या होता है कि अक्सर जो आप 2 घंटे पढ़ते हैं, एग्ज़ाम से पहले आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं. जो चैप्टर आप 2 घंटे में याद कर पाते हैं वो आप आधे घंटे में याद कर पा रहे हैं. दैट इज बिकॉज ऑफ हाइटेंड alertness, energy level, motivation. You are having cause to achieve something. So you are having eustress. That is productive. You are full of energy. You are full of motivation. What actually this is a curve. When this stress is further will be high, then you are not able to cope with this stress. Your energy level is not sufficient. Okay, your resources are not sufficient to cope with the stress. Then it will be counterproductive. Your productivity will go down. So that is called distress. Okay, you will have vague, unpleasant feeling. Okay, in this stress, we need to cut down the stress level and make it productive. Okay, तो इस स्टेज पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप कब यू स्ट्रेस से डिस्ट्रेस में चले गए. दैट इज द मैनेजमेंट टू कीप योर मोटिवेशन, योर एनर्जी लेवल एट हाईएस्ट. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना. हाउ विल यू आइडेंटिफाई? नेक्स्ट, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट यू आर गोइंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रेस? डिस्ट्रेस इज नॉट गुड. Okay, stress is having two parts, eustress and distress. So distress is not good for your physical health, for your productivity, for your social well-being, so for your academic performance. Distress is not good. So you need to cut down stress to keep it in the eustress level. So to identify this stress, there are some physical changes in the body in a stage of distress. So further, some people may have dryness of mouth, some people may have increased heartbeat, some people may have shortness of breath. Okay, some people may have tremor in hand before the exam situation. So these are the flag sign of the distress. Now you can identify that we are in the distress situation. So now you need to control the stress level. Some behavioral changes just before the exam. So you are looking here and there, you are seeking for the help, you are not able to collect the information. Some mental responses, sometimes there is a blackout. कोई टीचर आपसे कुछ पूछते हैं, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है लेकिन एकदम से भूल जाते हैं. So that is basically mental response of the stress. Emotional response, out of the stress you will be fearful, anxious. Okay, some people may cry where they will not able to handle the exam. So these are the various response of the distress. Okay, next. So stress for the student at your level, they can be academics. So there is a need to learn a lot of things and memorize them in routine days also, not only in exams. Okay, you need to meet the deadline of assignment and syllabus, chapters, homeworks. So that can be stressful for you. You need to
maintain your grades, that can be stressful for you. There are some social aspects also. There's a peer pressure in the class. Okay, we need to look smart, we need to be dominant in a group. So that peer pressure can also be a stress. New environment, as you are changing the school, coming to the new school, there is new environment, new friends. So that can also be a stress to you. Balancing academics and social life. Social life in class, in your home, going to relative, okay, celebrate the festivals and maintaining your academic level. So that balancing act can also be the stressful for the student life. Sometimes financial or commuting from distance to the school can also be a stress for the students. Next, all people are not responding equally to the response to the stress. ये जितने भी सारे कारण थे, हर व्यक्ति इनमें एक तरीके से रेस्पॉन्स नहीं करता. हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग होता है और एक व्यक्ति का दिमाग भी अलग अलग समय पे अलग अलग होता है. उसका जो परसेप्शन है और रिएक्शन है, दैट आर डिफरेंट एट डिफरेंट टाइम. ओके, एंड दिस इज हाईली सब्जेक्टिव. सो वी कैन नॉट कैलकुलेट स्ट्रेस बाय ऑब्जेक्टिवली कि भाई ये तो छोटी सी बात है, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो. सो दैट इज नॉट देयर. दिस इज सब्जेक्टिव फीलिंग and we need to share, we need to know rather than we need to identify objectively. Why do we get stress out? हम stress हमें क्यों होता है? Basically जो core है जिसका, one thing we perceive situation as a more dangerous, difficult and painful. जो situation है वो बहुत difficult है, we cannot overcome that. Second is we don't believe in our resources, in our coping. जो अपना motivation level है, जो अपना एनर्जी लेवल है, वी डोंट बिलीव इन दैट सिचुएशन, देन वी विल हैव दैट डिस्ट्रेस. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द वार्निंग साइन ऑफ द डिस्ट्रेस. व्हेन यू आर हैविंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज हार्ट रेट, ट्रेमर इन हैंड. ओके, सो दीज आर वार्निंग साइन ऑफ द डिस्ट्रेस. नाउ यू नीड टू कट डाउन द स्ट्रेस फ्रॉम डिस्ट्रेस टू यू स्ट्रेस, काउंटर प्रोडक्टिव टू प्रोडक्टिव. ओके, without fun and joy, with the work you are enjoying, okay, with the motivation. Actually panic attack can be there in a stressful situation, but actually stress is just like we are working in a gym. Panic attack is a mental disorder. This situation is not a mental disorder. This is a routine we are facing in day-to-day life. These are not qualifying for the illness. While panic attack is a disorder, mental disorder, and that having etiology, कुछ neurotransmitter, whatever we are feeling and behaving, they are controlled by brain, and brain is working with the help of some neurotransmitters. In panic attack, just like in diabetes, there is a chemical insulin. तो chemical insulin की कमी होती है तो हमारा शुगर लेवल डिस्टर्ब हो जाता है. तो पैनिक अटैक में कुछ परमानेंट चेंजेस होते हैं, दैट इज परवेसिव. ये बिल्कुल टेम्परेरी होता है. सिम्टम्स सेम है, सेम सिम्टम्स हो सकते हैं पैनिक अटैक में, दैट इज, बट दिस इज टेम्परेरी, दिस इज नॉट परसिस्टेंट. वो है ये क्या है कि बिना कुछ किए भी ठीक हो जाएगा. सिचुएशन है, सिचुएशन के रेस्पॉन्स में है, और सिचुएशन जब खत्म होगी तो व्यक्ति ठीक इससे बाहर निकल आएगा. सो हाउ कैन वी कट डाउन द स्ट्रेस लेवल? अब स्ट्रेस को कैसे कम करें? बहुत सिंपल से कुछ तरीके हैं, कुछ टेक्निक्स हैं. आप जब कभी किसी से शेयर करते हैं, आप कभी किसी से बात करते हैं, बात करने से मन हल्का होता है. ओके, दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन. व्हेन वी शेयर अवर हैप्पीनेस, जॉय, डिस्ट्रेस, देन वी विल बी रिलीव्ड. ओके, और अगर आप किसी से अपना जो डिस्ट्रेस बांटते नहीं है, वो जस्ट लाइक कि आप एक कमरे में हैं और कुछ सड़ रहा है और ना तो बाहर की हवा आ रही है, आप बंद हैं. जब अपने दरवाजे खोलेंगे तो बाहर से फ्रेश हवा आएगी, सड़ाक बाहर जाएगी, आप रिलीफ महसूस करेंगे. सो टॉकिंग इज जस्ट लाइक ए साइकोलॉजिकल वेंटिलेशन. आपके पास कुछ ऐसे मित्र होने चाहिए जिन पर आप विश्वास करें और अपने मन की सारी बातें बोल दें, बिना किसी सेंसरशिप के सारी चीज़ें बोल दें, केवल बोलने भरने से. ऐसा नहीं कि वो आपके लिए कुछ करें, केवल आप अपने मन की बातें बोल देंगे तो काफ़ी आप रिलीफ फील करेंगे. अच्छा, इस स्टेज में क्या है कि योर पेरेंट कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड्स. ठीक है, अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट. जो ऑनेस्ट
अगर ओपिनियन या गाइडेंस वहाँ से मिलेगा वो कहीं से नहीं मिल सकता। लेकिन अगर पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, फिर आपका कोई ना कोई एक दोस्त ऐसा होना चाहिए जिससे आप सारी बातें शेयर कर पाएँ और आपको ये डर ना लगे कि वो आपकी बात लीक करेगा या फिर आपको ह्यूमिलेट करेगा। आप फ्रीली बोल सकें, एक फ्री एसोसिएशन हो। चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द स्ट्रेस। बेसिकली स्ट्रेस इज 10% about the situation and 90% of response, our perception about the situation. So changing the attitude towards the situation, we can change the level of the stress. And this is just like अगर एक गिलास है, गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। So कुछ लोग कहेंगे कि भाई गिलास आधा भरा हुआ है, कुछ लोग कहेंगे गिलास आधा खाली है। तो इस तरीके से अगर आप ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपका एनर्जी लेवल बेहतर होता है, तो अपने आप स्ट्रेस लेवल कम आएगा। सो वी नीड टू चेंज आवर एटीट्यूड अबाउट द लाइफ सिचुएशन। सो वी नीड टू गेट पॉजिटिविटी आउट ऑफ द सिचुएशन। वी रियलिस्टिक, सो वी नीड टू सेट द रियलिस्टिक गोल। ओके, वी कैन डू a lot of things in life, okay, but we cannot do all the thing right now all together, कि सब कुछ अभी कर लेंगे और साथ में कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वी कैन डू ग्रेजुअली। तो आपके जो गोल हैं वो रियलिस्टिक होने चाहिए। आप जैसे आप 99 परसेंटाइल के लिए आप टारगेट कर रहे हो, तो आपके पास सिलेबस है। सिलेबस आप ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पूरा कर लोगे। आपके जो बेसिकली गोल हों फॉर द डे एंड फॉर द आवर, फॉर द वीक एंड फॉर द मंथ, दैट शुड बी द रियलिस्टिक। ओके, वी नीड टू असेस your performance day to day. Gradually you can enhance by 10%. Okay, if you are having target to enhance your performance by 50% or 80%, it will be little difficult and stressful. तो आप 10% आप increase करने का target रखते हैं, that can be the realistic. Get organized and take charge. Okay, so you are having syllabus for whole academic year. Okay, you can divide this whole syllabus, okay, to the months and weeks and then hours, days and hours. ठीक है, and assess your performance by hours or by days or by weeks. Okay, so you need to organize yourself, organize your time. तो अगर आप कहीं गलती कर रहे हो, अगर आपके मैनेजमेंट में कहीं समस्या है कि अब ये जो समय है कहीं बर्बाद तो नहीं हो रहा है, तो आप समय समय पे उसको असेस कर सकते हो, बजाय आप एग्ज़ाम के टाइम पे ये सोचने के यार पूरा साल निकल गया और मेरा ये सिलेबस कवर नहीं हुआ। तो डे 1 से ही आप पूरे अपने जो असाइनमेंट्स हैं उसको प्लान करके चलें। यू विल बी बेसिकली इन चार्ज ऑफ द सिचुएशन। सो टेक ब्रेक, गिव योरसेल्फ ए मी टाइम। ठीक है, इफ़ यू डोंट लव योरसेल्फ, यू कैन नॉट लव एनीथिंग, एनी पर्सन, एनी टास्क। ठीक है, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ वेरी गुड। ठीक है, वी नीड टू टेक अ ब्रेक। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, वी आर हैविंग द अटेंशन स्पान ऑफ 45 मिनट। अगर हम 45 मिनट तक लगातार कोई टास्क में इन्वॉल्व हैं, मेंटल टास्क में, तो उसके बाद हमारा अटेंशन कंसंट्रेशन लेवल डाउन जाता है, चाहे हम कितना भी इंटरेस्टिंग हो, राइट। उसके बाद अगर हम 2 घंटे लगातार पढ़ते रहे, तो वो 2 घंटे में हम इतना हासिल कर पाएंगे जितना कि हम बेसिकली फ्रेश माइंड में आधे घंटे में कर सकते हैं। सो दैट ब्रेक इज़ वेरी नेसेसरी एंड दिस इज़ नॉट अ वेस्टेज ऑफ टाइम। तो लाइफ में या आपके जो भी टास्क है उसमें आप ब्रेक जरूर लें, और जो ब्रेक हैं उसमें कुछ ऐसा काम करें जो एंटायरली आपका जो असाइनमेंट है, जो टास्क है, उससे डिफरेंट हो, जो आपको खुशी देता हो, कुछ भी हो सकता है वो। सो टेकिंग ब्रेक, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ विल बूस्ट योर एनर्जी, बूस्ट योर मोटिवेशन, एंड you will have fun out of that task. Yes. So sir, my question to you is that after studying we generally take breaks, but after taking breaks we sit for studying, but then we are not able to concentrate on what we were studying. So what is the science behind that? Yes. Actually, the timing of break can be different in different person. It can change with the subject. So some people they are having attention span of 40 minutes, some are having 50 minutes, some are having 1 hour. So if you are having attention span more than 45 minutes, it's good. But you will also feel yourself कि अभी यहाँ पे ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा आपको लगता है ना, ब्रेक जरूर लीजिए। ओके, रिदम आप वापस से मेंटेन कर लेंगे। ये ऐसा है कि लगातार जैसे ये मोबाइल है, ठीक है,
अब इसका वेट जो 200 ग्राम है, अगर मैंने इसको अगर 5 मिनट के लिए ऐसे उठाया कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी को 1 घंटे ऐसे उठाना पड़ा तो समस्या है, हाथ सुन्न होने लगेगा। और मुझसे कहा जाए कि 24 घंटे इस तरह से पकड़ के रखिए तो ऐसा लगेगा कि दुनिया में इससे बड़ा बोझा कुछ नहीं है। तो ये अकेला इसका जो वेट है ये इस पर निर्भर नहीं करता है कि कितना स्ट्रेस होगा, आप कितनी देर तक उस चीज़ को हैंडल करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए जब आप ब्रेक लेंगे यू विल बी रेडी विद न्यू एनर्जी टू डील विद इट। ठीक है, जब भी आपको महसूस हो कि हाँ यहाँ थकावट हो रही है आप जरूर ब्रेक लें, ज़बरदस्ती ना खींचें, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। Okay, again, so take good care of yourself, eat properly. This biological rhythm we need to maintain. We need this, our mental health, actually this sleep is a nourishment for our brain. So adequate sleep is very much necessary for the mental health to cope with the stress. And other physical needs, we need to take care, rest, food, okay. And these things, if you are taking yourself very good, you are dressing up, you are taking care of yourself, your motivation will be boost up. Paradoxically, the time we need to take care of ourselves the most when we are stressed is the time we do it the least. जब हम स्ट्रेस की सिचुएशन में होते हैं तब हम ये उल्टा करते हैं, अपना ध्यान रखना कम कर देते हैं। उसमें अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप थोड़ा सा रिलीफ, रिलैक्स महसूस करेंगे। So we need to say no. Actually, a lot of our friends, colleague, family member, they are very much submissive. They feel she will say no, then other people may feel offended and relation may not be as better as right now. कोई उनको लगता है कि ना कहेंगे तो दूसरे को बुरा लगेगा, संबंध खराब होंगे, तो ना नहीं कह पाते। एंड यूजुअली अगर कोई रिक्वेस्ट करता है किसी काम के लिए तो तुरंत वो करना शुरू कर देते हैं। क्लास में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, करते 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 स्ट्रेस तो होता ही है, उनसे ना नहीं कह पाए लेकिन अंदर ही अंदर कुंठित रहते हैं कि अगर मैंने मना कर दिया होता तो क्यों इतना झमेला पालता। उसके बाद क्या होता है कि एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ता चला जाता है और किसी भी मामूली सी बात पे वो एक एंगर आउटबर्स्ट के रूप में बाहर आता है। तो लोगों को लगता है कि क्या व्यक्ति है, छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा कर रहा है। तो ये सिचुएशन सामने आती है। सो यू नीड टू से नो और इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। किसी फालतू की बात पे कि जैसे अभी खाना खाएं, नहीं 5 मिनट खाएंगे, 5 मिनट बाद खाएंगे। सो यू नीड टू प्रैक्टिस दैट। ठीक है, और उससे आपका जो स्ट्रेस लेवल है काफी कम हो जाएगा। यू नीड टू बी असर्टिव। दिस इज कॉल्ड असर्टिवनेस ट्रेनिंग। ओके, so saying no doesn't mean you are not fitting in the society or not for everything. You need to judge the things. ये ऐसा नहीं कि पेरेंट ने कुछ कहा आपने मना कर दिया। ये ऐसा होता है जैसे क्लास में है कि एक व्यक्ति कहता है कि यार मेरा होमवर्क कर दे, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, परेशान हो गया हूँ, तू मेरा होमवर्क कर देना, ये तू नोट कर ले तो उससे मैं कॉपी ले लूँगा। ठीक है, तो मेरा डायग्राम तू बना दे। ये उस तरह के काम है। अब ग्रुप में एक थोड़ा सा डोमिनेंट होता है, बुलिंग करता है, मेरा डायग्राम बना देना। डायग्राम क्या पहचान में आ रहा है, राइटिंग तो है नहीं कुछ उसमें। तो इस तरह की चीज़ें, ऐसा नहीं कि पेरेंट्स को ना करने के लिए कहा है। पेरेंट्स तो बहुत सोच समझ के इन गुड फेथ आपसे किसी भी टास्क के लिए कहेंगे, लेकिन कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, ठीक है, कभी आप कहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, तो ये मेरा सामान ले जाना, 4 किलोमीटर आगे वहाँ जाना है, मेरा सामान दे देना वहाँ पे। इस तरह के काम, ठीक है, उनको नो करने के लिए। और ये हर काम के लिए नहीं है। आप फिर कुछ जज करें मेरिट के बेसिस पे, आपको नो कहना है। ऐसा नहीं कि आप हर चीज़ के लिए ना कहें, ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि पेरेंट्स के लिए ना कहना है। सो एक्सरसाइज आर वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर्स। When we do regular exercise, there is a chemical change in brain. They are catecholamines, which is the chemical of family from the this opioids. So they are having feel good effect. Endogenous, they are having feel good effect. So if we are doing regular exercise, we are feeling good. We are better coping with the stress. We are having better personality, better confidence, better energy level. So regular exercise can. So we need to sometimes slow down. We can do a lot of things in life together. Okay, this can cause stress.
जो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करना है और अभी करना है जरूरी नहीं है. You can cut down, you can set the priority. Okay, what is most important for me? You take up first that, and after, if you have resources and energy, you just take second thing. Okay, सारी चीज़ें इकट्ठी एक साथ करेंगे, प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस होगा. इस टाइम की आपकी स्टूडेंट लाइफ में आपकी पहली प्रायोरिटी आपकी एजुकेशन है. ओके, तो आपकी पहली प्रायोरिटी वो है. फिर उसके बाद भाई स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है, उसके बाद सोशल लाइफ ही आपकी ज़रूरी है. ठीक है, सोशल लाइफ में जब आप अपनी एजुकेशन पूरा करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा आपके पास, उसके बाद आप सोशल लाइफ मेंटेन करेंगे. ठीक है, इस समय प्रायोरिटी आपकी बेसिकली आपकी एजुकेशन है. तो मेन जो आपकी एनर्जी होगी, प्रायोरिटी होगी, वो एजुकेशन पे होगी. उसमें भी आपके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, टॉपिक्स होते हैं, कोई कौन सा टॉपिक भाई एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, आपकी प्रायोरिटी वो होगा, बजाय उसके कि किसी भी टॉपिक पे आप ज़्यादा समय बिताएं. तो यू नीड टू सेट द प्रायोरिटी टू कोप विद स्ट्रेस. प्रायोरिटी सेट करना बहुत ज़रूरी है. सो वी नीड टू यूज़ द ह्यूमर एंड लाफ. We are having some laughing clubs. We are laughing without the reason in the laughing club. And if we are mimicking the laugh, then there is same change in the brain which we are having while we are laughing with a heart. जब हम दिल से हंसते हैं, वास्तव में हंसते हैं, तो माइंड हल्का हो जाता है, फ्रेश हो जाता है. नकली में भी जब हम लोग हंसते हैं, जो रिसर्च हुई है, नकली जो हंसते हैं उसमें भी ब्रेन के अंदर उतने ही वैसे ही चेंजेस होते हैं. सो वी नीड टू have a good time, we need to laugh, we need to use a humor while in a stress situation, so it will help to cope with the stress. So we need to learn relax. अब स्ट्रेस हो ही गया, ठीक है. वैसे तो ये जो रिलैक्सेशन की जो एक्सरसाइज है वो आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है. स्ट्रेस से कोप करने स्टेप आपको पहले से करना है. अगर स्ट्रेस हो भी गया तब भी वी कैन ट्राई योगा, मेडिटेशन. दीज आर द सिंपल एक्सरसाइज to cope with stress. Okay, what are the stress symptoms of body? Stress symptoms body के होते हैं जो फ्लैग साइंस हैं, with shortness of breath, increased heart rate, tension in the basically muscles. Okay, shortness of breath. These are the flag sign of stress. Okay, our mind is observing these flag signs. Okay, and giving message to brain that we are in a situation of stress. So further stress hormone will be released. And we will have more peripheral symptoms of stress. These symptoms of stress, flag signs of stress. Okay, to cut down this vicious cycle. कोई स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, ब्रेन ऑब्जर्व करेगा, फर्दर स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, तो ये साइकिल चलता है. इस साइकिल को हमें ब्रेक करना है. तो हम ब्रेक कैसे करते हैं? तो योगा मेडिटेशन इज वेरी साइंटिफिक. ओके, इट इज एक्टिंग ऑन दिस ऑटोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ब्रेन. तो जब हम योग करते हैं तो योग में दो तरह के होते हैं, एक आसन होता है, एक प्राणायाम होता है. जब स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं तो हमारी मांसपेशियों का तनाव बढ़ जाता है. आसन के दौरान क्या करते हैं, हम जो स्ट्रेच करते हैं अपने बॉडी मसल्स को, स्ट्रेच करके उनको रिलीव करते हैं. तो हमारा जो मांसपेशियों का जो तनाव है वो कम होता है. तो ब्रेन को एक फीडबैक जाता है कि स्ट्रेस लेवल कम हुआ है, तो स्ट्रेस हार्मोन का लेवल भी कम होता है. दूसरी चीज़, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम में हम बेसिकली सांस पर नियंत्रण करते हैं. जो आपके कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये जो टेक्निक है प्राणायाम की, जिसमें हम सांस पे फोकस करते हैं, उसमें हम मांसपेशियों पे, आसन पे फोकस नहीं करते. तो जब हम इस पर फोकस करते हैं, धीमे धीमे आपकी सांस लेने की गति शिथिल पड़ती जाती है, मंद पड़ती जाती है. सांस और जो मांसपेशियों का जो तनाव है वो थोड़ा कम होता है. इसके साथ साथ आपकी सांस पे अगर फोकस करते हैं तो उसके साथ साथ हार्ट बीट भी कम होती चली जाती है. ब्रेन आपका ये ऑब्जर्व कर रहा है, ब्रेन एक मैसेज जाता है, फीडबैक जाता है ब्रेन को कि स्ट्रेस सिचुएशन कम हुई है. ओके, जब ये सिम्टम्स को ऑब्जर्व करता है तो फर्दर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल कम होता है. इस तरीके से हम स्ट्रेस से बाहर निकलते हैं. सो योगा मेडिटेशन इज वेरी मच साइंटिफिक, टाइम टेस्टेड टेक्निक टू कोप विद द स्ट्रेस. और when we have this practice in our as a lifestyle, डे टू डे लाइफ में होता है, तो धीमे धीमे अगर स्ट्रेस कोई आती भी है और जैसे कोई सिम्टम आता है, चाहे आपकी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, ट्रेमर हो, आप बड़ी आसानी से कोप कर लेते हो उस सिचुएशन को. नेक्स्ट, ओके, दिस
there's two things. Relaxation exercise, actually we evolved this practice in psychiatry. योगा मेडिटेशन नेचुरल है, ट्रेडिशनल है, हमारा हजारों सालों से चला आ रहा है. जो साइकेट्री जो एक ब्रांच ऑफ मेडिसिन है, उसने जो एक इवॉल्व किया है, दैट इज ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ब्रीदिंग एक्सरसाइज में क्या है, यू नीड टू टेक डीप ब्रीथ. ठीक है, यू नीड टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द एयर. यू नीड टू ऑब्जर्व एयर इज कमिंग टू योर नोस्ट्रिल्स, गोइंग थ्रू द थ्रोट. Your lung is the expansion in lung, okay, and then you are breathing out. So just observe your breath, okay, and just observe tension in your muscles, various group of muscles, your face, your shoulders, your arm, forearm, hand, legs, okay. When you are observing this tension level in your body, that tension will cut down ऑटोमेटिकली. ये लेवल जो टेंशन का है अपने आप कम हो जाता है. जब आप जो ब्रीथ की रिदम है उसको ऑब्जर्व करते हो तो उसका जो रेट है वो अपने आप कम होता चला जाता है. सो दिस इज बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज. इसमें दिस इज ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होता है. हम एक डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि कोई भी व्यक्ति होता है, फिर आराम से अपनी जहाँ बैठे हैं बैठ जाएं या लेट जाएं, और ग्रेजुअली अपने हर मसल ग्रुप को रिलैक्स करें और ब्रीदिंग पे फोकस करें. ओके, दिस इज अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज. तो इसके दो कंपोनेंट है, ब्रीदिंग और मसल रिलैक्सेशन. नेक्स्ट, अदर इज माइंडफुलनेस ऑब्जर्वेशन. देखिए, अगर हम गुस्से में हैं और हम इतना होश संभाल लें कि हम गुस्से में हैं, तो गुस्सा अपने आप ही आधा रह जाता है. इसी तरीके से अगर हम तनाव की स्थिति में हैं और हम अपने आप को इतना होश संभाल लें कि हाँ, इस समय मैं टेंशन महसूस कर रहा हूँ, टेंशन का लेवल बहुत ज़्यादा है, हाथ पैर में कंपन से होने लगे हैं, सांस मेरी तेज चल रही है और थोड़ा सा मुझे मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो रहा है. जब आप ऑब्जर्व करने लगेंगे एक्टिवली, धीमे धीमे कम होगा. So mindfulness is observing your thought, your emotions, okay, your body movements, your environment, okay. So live now and here, okay. So mindfulness is all about live now and here. जब आप उस क्षण में जीना शुरू कर देते हैं, उस क्षण में जब जीना शुरू करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है. ठीक है, बेसिकली जब आप फ्यूचर का बहुत ज़्यादा सोचते हैं तब आपके लाइफ में वो स्ट्रेस लेवल बढ़ता है. यू नीड टू एक्सरसाइज सेल्फ टॉक. जैसे आपने देखा कि मैं स्ट्रेस लेवल मेरा बढ़ रहा है, तो यू यूज दिस सेल्फ टॉक टेक्निक. अपने आप से बताइए, देखिए मैं डॉक्टर दिनेश अभी स्ट्रेस महसूस कर रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये विचार आया, ये इमोशन आया. वी नीड टू ऑब्जर्व दिस, लाइक जो गीता में बताया ना, साक्षी भाव से अपने आप से डिटैच होके और अपना माइंड, बॉडी, इमोशंस और एनवायरनमेंट को हम जब स्कैन करते हैं, उसकी सेल्फ टॉक करते हैं, तो अपने आप स्ट्रेस लेवल कम होता चला जाता है. तो अब आप लोग किसी जो भी स्ट्रेस सिचुएशन आपके लाइफ में आई हो, उस पे हम लोग चर्चा कर सकते हैं. ठीक है, आप इमेजिन करो कोई स्ट्रेस सिचुएशन है, उसमें आपने कैसे एक्ट किया. ठीक है, अलग अलग टेक्निक है. सबसे पहले स्ट्रेस आएगा तो भाई अपने मन की बात किसी से शेयर करोगे. ठीक है, प्रायोरिटी सेट करोगे कि क्या ये सही में हमारी प्रायोरिटी है कि नहीं है, अनवांटेड तो नहीं है, अनवांटेड टास्क है तो लीव दैट. ओके, उसके बाद यू नीड टू चेंज योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द सिचुएशन. ओके, कोई गिलास खाली है या भरा है, आधा खाली भी, कुछ लोग गिलास को आधा खाली देखते हैं, कुछ लोग आधा भरा देखते हैं. बी पॉजिटिव, भाई आधा भरा है, आधा भी भर जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद आता है कि सारी चीज़ें आपको एक टाइम पे नहीं कर सकते, तो समटाइम्स यू नीड टू स्लो डाउन, यू नीड टू टेक ए break. Okay, yoga, meditation can be of very good help. You need to take care of yourself. Basically है क्या, आपका मोटिवेशन. अगर आपका मोटिवेशन हाई है, आपका एनर्जी लेवल हाई है, तो वही सिचुएशन आपके लिए यू स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाएगी, वही सिचुएशन आपके लिए प्रोडक्टिव में सिचुएशन में कन्वर्ट हो जाएगी. अक्सर लोग सोचते हैं, अपनी क्षमताओं पे विश्वास नहीं करते. लोगों को लगता है कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगा.
अपने ह्यूमन माइंड का हम लोग लाइफ में करीब करीब 5% इस्तेमाल कर पाते हैं। आइंस्टीन ने मैक्सिमम 25% इस्तेमाल किया था। सो इफ़ यू आर यूजिंग मोर देन 5.0001%, then we will be extraordinary. So we need to compete with others. We need to compete with ourselves. We need to challenge our basically capacities. हमारी जो क्षमताएं उनको हमें चैलेंज करना है, ठीक है। और जहाँ तक क्षमता की बात आती है तो एक छोटा सा एग्जांपल अक्सर मैं देता हूँ। जैसे एक बाइक है, वो 1 लीटर में 50 किलोमीटर जाती है, तो 5 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगी? 250। और अगर उसका स्पार्क प्लग खराब है तो कहीं नहीं जाएगी। तो आपकी क्षमता क्या है, कुछ भी अचीव करने के लिए आपकी क्षमता क्या है वो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो महत्वपूर्ण है वो आपका मोटिवेशन है। मोटिवेशन लो रहता है और मोटिवेशन शुड बी इंट्रिंसिक, आपका अंदर से आना चाहिए, मन से आना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता है अच्छा, तो उसमें आप इंटरेस्ट कैसे जनरेट कर सकते हैं, उसको अपनी लाइफ से कोरिलेट करो। चाहे आपका जो सब्जेक्ट हैं, आपकी जो स्टडीज़ हैं, जैसे आप सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो जो सोशल स्टडीज़ पढ़ रहे हैं उसका लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन, जब आप बाहर निकलोगे, जब आप 4 लोगों के बीच में पहुंचोगे, जब आप नेशनल और इंटरनेशनल इशूज़ किसी पोजीशन पे होगे, नेशनल इंटरनेशनल इशूज़ होंगे, उसको डील करोगे, तो उसको अपने आप से कनेक्ट करो, विजुलाइज करो। केवल एक मेमोरी होती है आपकी शब्दों की। आप अगर मेमोरी बढ़ानी है तो उसको जैसे बोल बोल के पढ़ते हैं, तो आपकी एक ऑडिटरी मेमोरी भी हो गई। उससे भी स्ट्रांग होती है जो इमेजरीज होती हैं। आप इमेजिन करो सिचुएशन को, इमेजिन करके कनेक्ट करो अपने किसी भी लाइफ सिचुएशन से, तो वो चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेंगी। तो बेसिकली जो है आपका वो मोटिवेशन है। और लाइफ में कोई भी सिचुएशन खराब नहीं है, कोई भी स्ट्रेस आपके लाइफ में बाधक नहीं है। से एक पॉपुलर सी कविता है दिनकर जी की, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत बढ़ता है, सोने पे जितना आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, पर्वत नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राग सरल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। सो वी नीड टू बी पॉजिटिव। तो लाइफ में ये सिचुएशंस आती हैं, हमारे जो भी क्षमता हैं उसके अधिकतम उपयोग करने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए, हमें सजग करने के लिए, हमें जगाने के लिए। वही आपके लिए रास्ते का रोड़ा हो सकता है और उन्हीं को इकट्ठा करके आप सीढ़ी बना के अपनी जो बाधा है उसको पार कर सकते हैं। सो यू नीड टू चेंज योर ओपिनियन अबाउट द लाइफ सिचुएशन। और आपका किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, आपका कंपैरिजन आपकी पहले की जो प्रदर्शन है उससे, आपका उसी से कंपैरिजन है, किसी दूसरे से कंपैरिजन नहीं है। और आप में असीम क्षमताएं हैं। जैसा कि ना आप 5% इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रेन का, तो अब इसमें कहा जाए कि वो फला व्यक्ति इंटेलिजेंट है, वो कम इंटेलिजेंट है, ऐसे कैसे हो गया? अगर वो प्रैक्टिस करता है ना, अगर वो प्रैक्टिस करता है, अगर एक स्टूडेंट को कोई चीज़ याद करने में सपोज 1 घंटा लगता है, अगला व्यक्ति 1.5 घंटे में याद करता है, तो अब दूसरे व्यक्ति के लिए चैलेंज ये है कि आप वो 1.5 घंटा मैनेज करें। होशियार कोई किसी से नहीं हो गया। टेक्निक इस्तेमाल करें, विजुलाइज करें, चीज़ों को कनेक्ट करें। तो जीवन में कोई भी बाधा आपको रोकने के लिए नहीं आती। जैसे सोना होता है, मिट्टी है, जब तक उसको आग ना लगे, जितनी आग में तपता है वो निखर के आता है। इसी तरह से आप लोग हैं, जितनी जीवन में परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, और उनको जब आप सक्सेसफुली ओवरकम करोगे, तब आप एक नए व्यक्ति के रूप में खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए तैयार करोगे। धन्यवाद। Any questions, please? So nowadays, we adolescents are very much influenced by social medias, which gives us a perspective of a perfect Disney life. How can we resist the stress coming from the filters of internet life? Actually, this internet, media, movies, they are made for the entertainment. Okay, we need to take guidance from our parents, our teachers.
whether these are realistic or just imageries. So goal should be a realistic. Okay, as I mentioned, you need to take guidance from your parent and teachers to cope with this situation. Taking decision can also be very much stressful. So help is there at your school and at your family. Stress main reason these days can also be said to be caused due to excessive competition, though it is important but also creates peer pressure on a child. Besides these preventive measures, what is important for a child to understand? Right. Actually, first thing, your comparison is not from anybody else. Your comparison, if you want to successful in any competition, you need to first use your maximum capacity rather than looking here and there. You are running on the track and looking backward. भाई ये कितना आगे निकल आया, इससे कितना आगे निकल आया, मुँह के बल गिरोगे. ठीक है. You need to use your own capacity. आप अपनी पूरी क्षमताओं को इस्तेमाल करते हैं और आपका जो कंपटीशन है वो आपसे ही है. ठीक है. You should be have very good plan. प्लान जो है वो बेसिकली आपके प्रीवियस जो कंपटीशन है, एग्जाम है और जो भी आपके कोचेस हैं, टीचर हैं, वहाँ से आपकी प्लानिंग्स होगी और आपको अपनी पूरी क्षमताएं इस्तेमाल करनी है. आपको दूसरी तरफ देखना ही नहीं है. ठीक है. यू विल बी सक्सेसफुल. किसी दूसरे को देख के दूसरे से कंपेरिजन होकर वहाँ से मोटिवेशन नहीं आएगा, वहाँ से डर ही आएगा और टेंशन ही आएगी. जो आप तैयारी करने वाले 100 लोग हैं उसमें से टॉप के 5 लोगों से पूछोगे तो उनको किसी से फर्क नहीं पड़ता. एंड फर्स्ट थिंग, यू नीड टू बी फोकस्ड, यू नीड टू बी इंजॉइंग योर प्रिपरेशन. जब आपको देखोगे, जब आप चीज़ों से कनेक्ट करोगे, जब आप दिन ब दिन अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहे हो तो आप चीज़ को उस सब टारगेट जो है, जो टास्क है, उसको एंजॉय करना शुरू कर दोगे. जिस दिन आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया, देखिए, अगर आप अपने स्टडीज़ को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अपने सब्जेक्ट को एंजॉय नहीं कर रहे हो, तो वहाँ सोच लो कुछ या आप जिस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो, वहाँ आप समझिए कि दिक्कत है. जैसे आप मूवी देखते हैं, 3 घंटे की मूवी में आप थकते नहीं हैं. इसी तरीके से जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके सब्जेक्ट में आपको अच्छा है, किसी को हिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है, किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, तो वो देखते हैं कि भाई 3 घंटे पढ़ने के बाद भी बिल्कुल थकावट नहीं हुई. तो अगर आप अपने सब्जेक्ट को अपना लोगे, उसको बिल्कुल कनेक्ट कर लोगे, वो होता है कि जैसे आपके जो टीचर हैं, आपकी जो फैमिली है, उस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मलाइज कर दें. कई लोग सोचते हैं अरे मैथ तो बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश बड़ी मुश्किल है. ठीक है. तो उसमें बच्चों को भी अनकॉन्शियसली वो सारे थॉट्स आने लगते हैं, वो रिपल्सन होने लगता है. ठीक है. फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग, टीचर्स, जब आपकी सिचुएशन को नॉर्मलाइज कर दें, आप उसको बिल्कुल अपना लो, इंजॉय करने लगो, तो तभी आपको सफलता मिलेगी. Sir, my question is to you is how to deal with extremely stressful situations. Cure. There is a saying, prevention is better than cure. You need to have plan for the year. Okay. You need to take charge of your situation. Okay. You need to have divide your syllabus in months, weeks, days, and even in the day you need to compare your performance forenoon, afternoon. Okay. By being in charge of the situation, that will not surprise you. Certain exam will not surprise you. And second thing, you cannot do anything. Okay. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हर चीज़ नहीं कर सकते. अचानक से ऐसे एग्जाम आ ही गया, पूरी क्लास ने कुछ नहीं पढ़ा है, अब जो होगा सो होगा. ठीक है. यू विल हैव सेकंड चांस. और कोई ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जो जीवन में कभी असफल नहीं हुआ हो. सो इम्पोर्टेंट इज टू हाउ टू कोप विद फेलियर देन द हाउ टू गेट सक्सेस. अगर आप फेलियर को कोप करना सीख गए, उससे लर्न करना सीख गए, उसको ओवरकम करना सीख गए, ठीक है, और हर चीज़ पे आपका कंट्रोल होगा ऐसा संभव ही नहीं है. और सिचुएशन का चार्ज आपके हाथ में रहे, उसके लिए आपकी बेटर प्लानिंग, प्रायोरिटी, ओके, ये आप शुरू से ही सेट करके रखें. थैंक यू. Thank you very much for those words, sir. Again, from the depths of our heart, thank you very much.